So very excited about this. I started my small journey from a girls' hostel there in Karachi. And that's it. Alright, that's a lovely story, Sumbul, and we're also excited to be here. You ma'am. I'm Sunera. I just want to know about the basic e-commerce or wanted to launch my own e-commerce platform, ABS Miracle, and where I want to have some product line for organic things. So recently I don't know about the e-commerce. I just want to know about it. Do you have your product line in place? Do you have your product in place? I have my product sourcing, business, finance, each and everything in it, other than e-commerce. So what exactly is your product? You mentioned organic products. Organic products is about the poultry or organic masale, like hot spices जो होते हैं हमारे, dehydrated fruits होते हैं, dates and nuts होती हैं, इस तरह का like जो basic organic structure होना चाहिए किसी भी घर का, वो उसमें हम काम कर रहे हैं. Alright, we'll like मिट्टी के बर्तन जो कि अब फैशन में नहीं हैं, but if you cook the food in the pot like जो मिट्टी का हमारी हांडी जिसे कहते हैं इस ज़माने में, अगर आप उसमें आप बनाते हैं तो आपका फूड का टेस्ट और हो सकता है. बट अगर आप स्टेनलेस स्टील या नॉन स्टिक पे बनाते हैं उसका फूड टेस्ट कुछ और होता है. True. तो वो ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो बेसिकली आपका ऑर्गेनिक हम सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करें तो हमारी जो बनाने की चीज़ है वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए. Makes sense, makes sense. We'll learn a bit more about Because this. India is working on this industry or capturing the 85% audience from Amazon. तो वो बहुत बड़ा स्पेस है जो कि पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही है. हमारे यहाँ जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बहुत अमीर हो जाते हैं वो मेलामाइंड में चले जाते हैं. तो दिस इज द स्टोरी. Alright, we'll learn more about your business while we'll be discussing our slides. You ma'am. My name is Sana. I'm a student associate member of Charity Market, and I recently started my own charity market fund, January, and I'm wanting to know about it. Alright, lovely. My name is Maggie, Brian Zulfikar. We are a manufacturer of plastic household items, majorly home and kitchen items. Alright. So, My name is Mohammed Islam. Me and my father are the owner of distribution of FMCG products. Basically, I am known myself to delve into this venture because we are open market for the international for these purposes. And I'm coming in this business just because I want to set my business in this niche, which is clothing. इस clothing business में आने के लिए मैं internationally choose किया हुआ है, क्योंकि ये जो Shopify वगैरह यहाँ पे existing अभी फाउंडेशन बनाना बहुत मुश्किल है as compared to बाहर as a newbie के लिए. तो उसके लिए एक great mentor की ज़रूरत है जैसे कि आप हैं. थैंक यू सो मच. आपकी बहुत सारी मिथ्स आज हम कोशिश करेंगे कि तोड़ें कि शॉपिफाई मुश्किल है या आसान है. विल ट्राई टू ब्रेक दोस मिथ्स. जी सर. आपका नाम है और वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ. ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर शॉपिफाई पे बनाते हैं साइट या किस पे बनाते हैं? नहीं, कॉमर्स पे बनाते हैं. वेरिएबल टू कोडिंग होती है. ऑलराइट. जी सर. भी रिक्वायर्ड जी. रेडी टू वेयर आउटफिट्स हम सेट करते हैं. किड्स के और वुमेन्स के और फोक के नाम से. और शायद आप पहले भी कैसे फॉलो करते हैं आपकी कुछ मुझे पता चला है ऐसे का नहीं. अच्छा, आप तनवीर साहब हैं. कमेंट. जी. बहुत शुक्रिया. लर्न करने के लिए नहीं आए विल ट्राई आवर बेस्ट. पहले से कह रहे थे. नहीं यार, ट्राई आवर बेस्ट कि हम इतना इंटरेक्टिव रखें कि हम एक दूसरे से सीखें. बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपके कपड़ों का कारोबार है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर हैं, आप भी कुछ करते हैं, आपका मैम कॉन्ट्री का काम है. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी बी लर्निंग फ्रॉम ईच अदर टुडे. सेशन इंटरेक्टिव होगा और मैं इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी. इनसे आप सॉरी आप रह गई थी. जी. My name is Komal. Yeah. For Data, and it's working on making virus application accessible. सॉरी कम अगेन. It's working on making the virus application more accessible and friendly. Alright, that's interesting. Okay, so we have a very diverse group here, sir. My name is Mohammed Salman. Basically, I'm an ECC and a freelancer. But on the side, I've been doing print on demand on Amazon KDB. I'm trying to get into it. And recently, Etsy has been open in Pakistan. So मैं कल Etsy पे account बना रहा था. जी. So I thought with the view of selling print on demand there. Alright. So I just do my thing on my side. So that's the reason of coming here. That's interesting. You ma'am?
मैं फेमिना हूँ, मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ और रिसर्च कर रही हूँ अभी। देखिए, जब आप किसी चीज़ में आते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च वर्क बड़ा ज़रूरी होता है। कभी कभी आप कुछ बैठ के सोच रहे होते हैं, असल आप फील्ड में जाते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए आपको अपने आप को अपडेट करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी फील्ड से हट कर होती है, फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आई एम इन प्रोसेस। Alright. You two are joining us in the session today. जी, आप आगे आपका नाम? मेरा क्या इरम, क्या कर रही हैं आप? जी, आप मेरे सांस हैं, इसके पास जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सैयद वकास हुसैन है। मैं आइडिएशन स्टेज पर हूँ, सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में कुछ आइडिएशन और चीज़ें सीखना है। Alright, so let's start the session from today. E-commerce का नाम सबने सुना होगा, right? E-commerce क्या होता है? What is e-commerce? Anyone? What is e-commerce? No idea. I think Any wild guess? जी. It's a virtual thing, something like that. Virtually you can sell your product or services. No physical existence. True. Anybody else? Yes. वो भी ऑनलाइन सेल काम करते हैं, फिजिकली ट्रेडिशन के ऑनलाइन वो भी मेरे लिए That's true. Anybody else? Any wild guesses? What is e-commerce? हाँ, electronic commerce, electronic business. Commerce का मतलब business, electronic, e मतलब electronic. Yes. So before I jump onto my sessions, let me introduce you to two of my brilliant colleagues here with me. This is Amber. She's my digital marketing manager. She does performance marketing for me. Performance marketing क्या होता है? जो ads आपको नजर आते हैं, जिसको आपने शॉप नाउ लिखा होता है, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें एड्स देखते होंगे, इसमें लिखा होगा लर्न मोर या फिर शॉप नाउ। तो अलकरम की जो एड्स चलाती हैं वो ये मोहतरमा है और इनकी टीम है, और ये है मारूफ, ये मेरी प्रोडक्ट मैनेजर है। अगर आपने कभी अलकरम की वेबसाइट कभी देखी है तो उसमें जितना भी कंटेंट हमारी ऑनबोर्डिंग वगैरह होती है, कंफ्यूजिंग है। ऑलराइट, एग्जैक्टली, नोट द पॉइंट। I will take your, because whenever I try to buy my kids dress, तो या तो साइज चार्ट ओपन नहीं होता है, या वो पिक्चर स्क्रॉल आप करते रहो, आपको आइडिया ही नहीं होता कि स्टाइल क्या है। एक स्क्रीन आपकी को रुक जाती है, आप उसको बैक करके बार-बार करते रहो, और सही काम ही नहीं करता। मतलब जो ड्रेस पसंद आया वही नहीं खुलेगा। And this is on your mobile. मोबाइल में भी और सिस्टम पे मतलब एक दफा लास्ट में मैंने आपका ड्रेस पिक करना था, येलो कलर का था, ठीक है, और मैं उसमें अपनी बेटी की साइज की मेजरमेंट ढूंढते थक गई, एंड देन आई बाय दिस फ्रॉम सफायर। ऑलराइट, ये सबसे खतरनाक चीज है। तो मैं अलकरम को इसलिए अवॉइड करती हूँ कि वहाँ से आप ऑनलाइन शॉप नहीं कर सकते, आपको फिजिकली जाकर शॉपिंग करनी पड़ेगी। बहुत खतरनाक बातें कर रही है मेरे सामने, मेरी टीम के सामने, पर चले वील टेक द एक्सपीरियंस। आई अंडरस्टैंड, नो, वी आर टेकिंग अप योर फीडबैक एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज। इसमें जो अब क्यों ये फीडबैक हम सुन रहे हैं कि लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप वी हैव अ वेबसाइट डेवलपर हियर विद अस, लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन देयर इज अ वेबसाइट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टेक प्रोडक्ट व्हिच इज लाइव, इट्स अ वर्चुअल स्टोर। जिस तरह हमारा अपना रिटेल ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर पे हमें पेंटिंग देखनी पड़ती है या सीलिंग सही करवानी पड़ती है, इसी तरह आपका जो वेबसाइट होता है उसमें भी बहुत से मरतबा वेयर एंड टेयर इज नॉट द राइट वर्ड टू बी यूजिंग फॉर इट, बट देयर इज could be internet issue, there could be some glitch with your site, there could be some glitch with the platform at the moment, or there could be some other technical reason why, or there could be a human problem where probably the site charts have not been onboarded because of some other reason. So these are the things which will make your customer lose faith in you, right? And we get such complaints every now and then. So what we do is, as business not owners, not entrepreneurs, but as somebody who's running the site, we try our best to make sure that we rectify this problem so that we can enable our consumers to buy from us, right? चलिए इस बात के ऊपर हम डाइव करते हैं आज के एजेंडा पर। एजेंडा आज का क्या है? एजेंडा आज ये है, हम बात करेंगे राइट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें कुछ स्टार्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ग्लोबल स्टार्स क्या है ई कॉमर्स के। फिर हम बात करेंगे बेसिक पे। ये आज का जो डेक है बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, जिसमें मैं आपको 3-4 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन कर रही होंगी। उसमें कुछ चीज़ें होंगी, पहले तो अगर आपने स्टार्स की बात की, स्टार्स क्या है, फिर हम आ जाएंगे अपने ऑपरेशंस वाली साइड के ऊपर कि ऑपरेशंस ई कॉमर्स से कैसे रन किए जाते हैं। प्रोडक्ट साइड के ऊपर आ जाएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना चाहिए, किस पे वेबसाइट बनानी चाहिए, क्या वेबसाइट्स होती हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या तरीका है इसको मैनेज करने का। और फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग के, उसके टूल्स क्या होते हैं, क्या इस्तेमाल की जाती है, हर चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। अच्छा, इसके अलावा पेमेंट गेटवे
आपको पेमेंट भी लेनी है, तो पेमेंट के मेथड्स क्या है और पेमेंट गेटवे क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी वेरी surface level information that I'll be sharing with you. If you have any questions, you can ask questions, and the more you ask, the more I'll be able to answer. Right? अच्छा जी, rise of e-commerce. Revenue in the e-commerce market is projected by 5.9 million by in 2025. ये US के stats हैं. कुछ stats हैं, आप कहेंगे ये stats हम जान के क्या करें? तो क्यों आपको ये stats जानना जरूरी है? क्योंकि अगर हम जब यहाँ बात करें, आप लोग के डिफरेंट बिजनेसेस यहाँ पर हैं, राइट? आपने किसी ने आपका पॉटरी का बिजनेस है, किसी का FMCG का बिजनेस है, किसी का रिटेल फैशन का बिजनेस है. तो अगर आप ये स्लाइड्स यहाँ पे देखें कि 27 से लेकर 29 तक प्रोजेक्शन क्या क्या है और कौन सी कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं. आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है. आप काफी हाइट पे नीचे बैठे हैं. अगर आप देखें तो येलो में कहा इलेक्ट्रॉनिक्स है. आपने सुना होगा कि 2015 और 16 के बीच में दराज और एक TCS का ये वो बाय TCS बहुत ज़्यादा आया था. ये वो कि हमें एड्स लिखना शुरू हो जाते हो गए थे और एकदम से 2014, 15 और 16 के अंदर हमने सुनना शुरू किया ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे एंड ऑल दोज फ्राइडेज. ये सब क्या था? ये वो बूम था जब दराज ने टेक ओवर किया. केमू बंद हो गया पाकिस्तान में से 2014 में. केमू एक मार्केट प्लेस है. मार्केट प्लेस क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हों जिसके साथ आप खरीदो फरोख्त कर सकें. दराज एक मार्केट प्लेस है. अलकरम, बोनांजा, खादी, सफायर ये ब्रांड्स हैं जिनके brand.com है. तो पहला तो फ़र्क हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट प्लेस क्या है और brand.com क्या है. अगर हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं घर बैठ के कोई काम स्टार्ट करना चाहूँगी, तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ चाहूँगी? मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि मेरे बारे में विजिबिलिटी क्रिएट हो, लोगों को मेरे बारे में पता चले और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हो. फूड पांडा क्या है? एक क्यू कॉमर्स ऐप है. क्यू कॉमर्स क्या होता है? क्विक कॉमर्स, राइट? क्यू कॉमर्स में अगर आपने देखा होगा फूड पांडा पे बहुत सारे होम शेफ्स भी लिस्टेड है. अब ये होम शेफ्स के अपने फूड पेजेस क्या पता फेसबुक के हों, क्या पता ना हो उनके. क्यों ना हो? बिकॉज उसकी फोटोग्राफी करनी पड़ती है, प्रमोट करना पड़ता है, डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जाना पड़ता है. तो होम शेफ्स क्या करते हैं? वो फूड पांडा के ऊपर इनलिस्ट करते हैं. अब कमीशन उसके बहुत हाई होते हैं, ऑफ कोर्स 35% 40% कमीशन होता है. मगर वो उस कमीशन को इग्नोर करते हैं. क्या वजह है उसकी? इग्नोर करने की वजह ये है ताकि वो फ्रॉम द गेट गो दे विल एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग सम आईबॉल्स एंड दे विल स्टार्ट एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग, क्रिएट मोर मार्केटिंग नेटवर्किंग फॉर देमसेल्व्स. सिमिलरली जो छोटे SMEs होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे हम कहते हैं, अगर घर बैठ के आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इनरोल करेंगे. बाहर लोग होते हैं अमेजोन में इनरोल करते हैं, यहाँ से अमेजोन में इनरोल करने की कोशिश करते हैं. अलीबाबा हमारे पास है नहीं. टेमो का आपने ऐड सब देखे होंगे. टेमो पे अभी हम इनरोल नहीं कर सकते, मगर हमारे पास क्या है? मीडियम. हमारा मीडियम है. टेलीमार्ट हो गया, टेलीमार्ट का तो अपना फ्रेंचाइजर. दराज हो गया. दराज में आपने बहुत सारे सेलर्स और रीसेलर्स देखे होंगे. जो चीज़ OLX अगर आप देखें, सेलर्स, रीसेलर, पार्क व्हील्स में क्या होता है? लोग अपनी गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं. तो क्या होता है कि पार्क व्हील्स या दराज आपके प्रोडक्ट को मार्केट करता है, आपके पास ऑर्डर्स लेकर आता है और आपकी सारी मेहनत के प्रोडक्ट हालांकि आपकी है, उस सारी मेहनत के आपको क्या देता है? आपसे कमीशन चार्ज करता है, फिर आपको पे ऑफ करता है. कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड इन 2015 एंड 14. 15 एंड 16 के अंदर दराज वाज ऑल टाइम हाई. दराज स्टिल नंबर 1 मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान. उस वक्त brand.com जितने भी आप ब्रांड्स हैं हमारे, उन ब्रांड्स की अपनी अपनी साइट्स एज सच स्टैब्लिश नहीं हुई थी. ये बात 2015-16 की है. तो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? ग्रीन में क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये मार्केट प्लेसेस थी इलेक्ट्रॉनिक्स की. अच्छा, मैंने पर्सनली ये वो में काम किया है 2016-17 के टेन्योर के अंदर. तो मेरे पास फैशन कैटेगरी ही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली जितने भी ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जितने भी ऑर्डर्स आते थे वो ज़्यादा आते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के. इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है? मोबाइल, अप्लाइंसेस. बिकॉज ये हाई वॉल्यूम आइटम होता है और हाई रेवेन्यू वैल्यू आइटम भी होता है, तो उसका वॉल्यूम भी हाई होता है और वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि अगर आप एक फ्रिज बेच रहे हैं तो वो 50 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, राइट? तो आपको राइट ऑफ द बैट एक अच्छा अमाउंट आपका GMV मिलना शुरू. GMV क्या होता है? ग्रॉस मार्जिनल वैल्यू. GMV मिलना शुरू हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑन ऑल टाइम हाई. इसका मतलब ये नहीं कि जो फैशन वाले वो करें अरे भाई फैशन तो बिक नहीं रहा. 16-17 के बाद क्या हुआ? 17 के बाद खुले brand.com. brand.com से मतलब क्या? alkaram.com, khadi.com, sapphire.com, bonanza.com, whatever.com.
तो जब ये brand.coms खुले तो रिटेल फैशन ने बूम पकड़ लिया, क्योंकि पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं शॉपिंग करते हैं, राइट, ऐसे ही करते हैं। तो जब brand.com ने अपना वो पकड़ा तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि आज अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स कैसे हो रहा है, तो किसी मार्केट प्लेस के बाद अगर कहीं ई-कॉमर्स हो रहा है तो वो एक्चुअली रिटेल फैशन में हो रहा है। और मार्केट प्लेस क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या बिक रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ये सब कुछ बिक रहा है, या आपका होम कैटेगरी, नहीं सॉरी नॉट होम कैटेगरी, योर कंज्यूमर कैटेगरी इज सेलिंग। व्हाट इज कंज्यूमर कैटेगरी? योर एफएमसीजी और मसाला, योर ये जो आपकी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी ज़्यादा बहुत बिकती हैं। फूड पांडा पे अगर आप देखें, कभी कभी अब आप लोग क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और किसी भी मार्ट से शॉपिंग कर लेते हैं, राइट। फूड पांडा पे कपड़े भी आ गए हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, मगर कपड़े शायद आप लेते हुए कुछ सोचें, मगर ग्रोसरी आप फूड पांडा से परचेज कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग फूड। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो उसके बाद अगर आप देखें फर्नीचर कहीं कम है, पीपल स्टिल वांट टू गो एंड हैव अ लुक इन फील्ड ऑफ फर्नीचर। फैशन इज इन रेड अगेन, सेकंड मोस्ट सेलिंग कैटेगरीज अगेन फैशन, बिकॉज उसके बाद फैशन ने पिक करना शुरू कर दिया। मतलब 2029 तक की प्रेडिक्शन ये है कि वी विल बी कंपीटिंग बिटवीन योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द फैशन, बिकॉज पाकिस्तान की किसी बाहर पे भी फैशन इज व्हाट इज सेलिंग मोर। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, नाउ मूव ऑन टू की सारी पीछे की प्रेफरेंस देने का मकसद ये है, अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो अगर आप देखिए ई-कॉम की पेनिट्रेशन जो है पाकिस्तान में 3%, 220 मिलियन, और मीडियन एज क्या है, 23 ईयर्स। पाकिस्तान की मीडियन एज क्या होती है? व्हाट इज मीडियन एज? एनी आइडिया? मीडियन एज का मतलब है जी, सॉरी आप जब यानी जो कस्टमर यानी उसकी इनिशियली एज जब वो बाय करने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है, क्लोज, वेरी क्लोज। तो हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है जिसको अंबर टारगेट करती है वो 18 to 24 होता है, उसके बाद आगे के टारगेट होते हैं। मीडियन एज का मतलब है कि आपका आज जो एवरेज जो कंज्यूमर है आपका ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए उसकी एज जो है 23 साल, दैट्स द मीडियन एज, विच मीन्स कि अब हम सारे ब्रांड्स हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम पीपल अबव 35, 40, 45 टू वी हैव टू स्टार्ट टारगेटिंग द यंगर ऑडियंस, बिकॉज आपका जो मेन कंज्यूमर है वो 18 से 24 वाले ब्रैकेट के अंदर है। आज अगर हमने उस ब्रैकेट को टारगेट नहीं किया, उनके साथ जो है रिलेट नहीं किया, तो हम कहीं अपना कंज्यूमर इन दैट फ्यूचर कंज्यूमर अपना खराब कर देंगे। यस। और अगर हम ई-कॉम ग्रोथ इन पाकिस्तान की बात करें तो ई-कॉम यूजर्स हमारे 2024 में 9.2 मिलियन, 2023 में हमारे पास रेवेन्यू 4.7 बिलियन हमने सिर्फ अलोन ई-कॉम से जनरेट किया। और अगर इंटरनेट मोबाइल बैंक ट्रांजैक्शन की बात करें तो 189 मिलियन 2023 में। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? चलिए बात करते हैं। अच्छा, सो नाउ मोस्ट ऑफ यू इन्फॉर्म्ड मी एंड वी डिस्कस व्हाट ई-कॉमर्स। मैंने सारी जो बात की सब आप लोगों को क्या समझ आया अबाउट ई-कॉमर्स एंड इट्स हाउ इट वर्क्स? यानी किसी भी चीज़ की मार्केट को पहले हमें ग्रैब करना है, देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, टारगेटेड किसको टारगेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना सारा यानी पूरा सेटअप बनाना है। जैसे आप यानी इधर उधर जाने के बजाय बिल्कुल आप फोकस होकर आपको उस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। Any other takeaway from this conversation so far? Nothing? E-commerce is something that goes with the trend, like according to as the ad changes, demand and everything changes. That's true. That's true. All right. Now, let's discuss e-commerce models, which is a right fit for you all. हम one by one आप लोग से दोबारा पूछेंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, फिर let's try to mitigate and tag कि आपका कहाँ पे लैंड करता है। पहले मैं समझाऊंगी कि इनका सबका मकसद क्या है। हमने पहले क्या बात है कि ई-कॉमर्स से क्या होता है, you are not limited by any geographical territory. You can be available anywhere in the world. We can ship globally based on your product. आप परफ्यूम्स ही बेच सकते हैं, खाना पीना बाहर नहीं बेच सकते, एंड फेमेबल आइटम्स बाहर नहीं बेच सकते। उसके अलावा आप कपड़े, जूते, ज्वेलरी ये सब बाहर आप भेज सकते हैं, तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं है। आज मैं अगर यहाँ अपना लेट्स सपोज सक्कर से बैठ के भी अपना बिजनेस लंदन में भी चीज़ें मैं भिजवा सकती हूँ। नो, नथिंग इज स्टॉपिंग मी। I can ship globally, right? Cost effective and lower overhead than traditional retail. क्या मतलब इस बात का?
कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हमारे पास हमें फिजिकल प्लेस की कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए, आप वन हैंड लाइक आप एक रूम के अंदर ही आप अपना सारा स्टॉक डंप करके आप अपना काम कर सकते हैं इजीली। यस, एंड यू डोंट नीड टू हायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ मैन पावर। एक हम दुकान चलाते हैं किसी की भी, चाहे फैशन की, मैं फैशन की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होगी कि ज़्यादा मैंने काम फैशन में किया है। अगर आप किसी स्टोर पे जाते हैं, उस स्टोर में क्या होता है आपने देखा होगा कि मल्टीपल लोग होते हैं, सेल्समैन होते हैं, पीछे वेयरहाउस मैनेज करने के लिए कोई होता है, फ्रंट डेस्क पे कोई होता है, बिजली पानी का रेंट एंड ऑल दैट। उसी दुकान को अगर मैं आपको बताऊं कि उसी दुकान से हम वो दुकान भी चला सकते हैं, उसी दुकान से हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। क्या मतलब आपने क्या किया कि एक ही उसके ऊपर आपने ओमनी चैनल क्रिएट करके मल्टीपल तरीके से लोगों को टैग करना शुरू कर दिया और आपने अपना जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपने एक्सपोज कर दी कंज्यूमर्स को। दैट मीन्स के यू सेव ऑन योर ओवरहेड, दैट्स योर स्केलेबिलिटी, ऑटोमेशन, एक्सपेंशन पॉसिबल विदाउट लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगेन एक दुकान खोली भी है, लाइक द मैडम हियर सेड कि हम किसी घर से बैठ के भी कर सकते हैं, हमें कोई लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट बच जाती है। यस एग्जैक्टली। रियल टाइम इनसाइट्स एंड कंज्यूमर एनालिटिक्स आपके पास हम डिस्कस करेंगे कि क्या टूल्स हैं जहाँ पे आपको रियल टाइम नजर आना, डैशबोर्ड एक पे नजर आना शुरू हो जाता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर क्या चल रहा है या पीछे आपके कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह का है। रिटेल स्टोर में ये जानना थोड़ा मुश्किल है, आप डिपेंडेंट हैं अपने सेल्स पर्सन के कि वो आपको बताएगा कि हाँ भाई क्या हुआ, कौन से लोग कौन सा आइटम ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, कि लोग आके क्या कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमें उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। अगर आप ई-कॉम चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको जो डेटा है वही आपको बता देगा कि क्या हो रहा है। यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी, योर डेटा इज योर improve customer experience and personalization. You can tweak your site however you want. Whatever you want to do, you can actually tweak it. Now, moving on to these 4 categories. B2C सुना है सब किसने? Business to consumer, business to consumer, All right. business to business, consumer to एक एक करके लेके चलते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं। B2C के अंदर हमने देखा business to consumer, right? Starbucks, Nike, Netflix, मतलब कोई लोकल ब्रांड्स बताइए जो B2C है। उसके अलावा KFC, हाँ, you guys not answering. All right, yes. B2B क्या होता है? Business to business. business to business, Business to business में आपका क्या एग्जाम्पल हो सकता medical equipments, and Company strength they are something. yes, very good. And Net software that we consume. yes, they provide software. Yes, definitely. Any distributor, like she mentioned here. यहाँ पे examples हमारा जो कोरियन partners हैं, FedEx, DHL, Trax, B2B. That's how they are behaving, right? Alibaba B2B और C2B भी हो सकता है, दोनों तरह से जा सकता है। Alibaba B2C कर रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई है B2C में। वो बेसिकली B2C भी हो सकता है, C2B भी वो हो तो सकता है, सकता हर तरह दोनों से तरह सकता है। का। अभी recently किया उसने B2C। Yes, yes, yes. C2C क्या होता है? Consumer to consumer. OLX like multi vendor websites हैं। हाँ, OLX कस्टमर ही सेल कर रहा है और कस्टमर से परचेज कर रहा है। Food Panda, OLX, Careem.com, Uber आप ध्यान है, पर Careem, Uber, InDrive, Yango, all these apps. Yes. C2B क्या होता है? Consumer to business. What is C2B? यहाँ लिखा हुआ है Shopify, Freelancer, Amazon, मतलब क्या? मल्टी वेंडर कैसे होगा कंज्यूमर टू बिजनेस? सोचें। बिजनेस टू कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर टू बिजनेस नहीं, कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो सकता है। वेबसाइट बनाते हैं वो उससे बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए तो मल्टी वेंडर कैटेगरी में आता है। इन्होंने साइट बनाई, राइट? अब मैंने इनकी सर्विसेज परचेज करनी है, राइट? मैं कंज्यूमर हूँ, तो मैं बिजनेस के पास जा रही हूँ कि मैंने आपकी साइट इस्तेमाल करनी है, मैं आपको रिटेलर दूंगी, तो ये C2B हो गया ना, सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली, योर सर्विस इंडस्ट्री। यू गोइंग टू द कंज्यूमर, I'm getting his software, I'm buying his software, so I'm a consumer going to business, getting the software, and so that's how it's C2B. What else? Freelancers क्या करते हैं हमारे? Freelancers क्या करते हैं? अपना काम जो है बिजनेस के लिए करते हैं, and they get money remuneration out of it. And then वो जो उनको बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मैंने 5-6 लोग हायर, इन दोनों को मैंने सपोज हायर किया है, आप कल साहब ने मुझे कोई काम दिया और ये मैंने अपने पास ये 2 मेरे लोग हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं है ये, माइंड यू,
बट ये मुझे काम करके दे रहे हैं या मुझे कह रहे हैं कि भाई हम आपको काम करके देंगे, यू कनेक्ट मी ईदर विद दिस गाय और आई एम सपोज टू कनेक्ट हिम to these two. They will not be seeing him ever, but I am the main person who is actually offering freelance work. So that's freelancing. और different platform, Upwork वगैरह भी होता है. आप Upwork तो एक पूरा business है ना, आप उसके पास जा रहे हैं कि भाई Upwork में जाकर काम ढूंढ रहे हैं. So you're getting paid then, right? So that's part of C2C. Now choosing the right e-commerce platform. Why WooCommerce? Why do you create websites on WooCommerce? Shopify के charges. Sorry? Shopify है तो कोई फ्री तो है, लेकिन वो जिस तरह WooCommerce में भी हमें लिमिटेशन आती है, अगर हम प्रीमियम भी देते हैं तो उसमें भी प्लगइन्स देने पड़ते हैं. प्रीमियम खरीदने के बाद भी मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है कि पैसे देके भी ओके. किसी ने Shopify के बारे में सुना है यहाँ पे? अच्छा. I think $59 पे करने के लिए मेंटेनेंस के उसके. It starts from actually they keep changing. बीच में उनका भी एक महीने पहले ऑफर था कि अगर आप $9 से स्टार्ट करें और अगले 3 महीने भी $9 पे करेंगे, चौथे महीने में $29. वो they keep revising their pricing strategy. It starts from I think $9 और फिर लास्ट हमने क्या देखा था 29 से अब बेसिक प्लान 29 का है. They keep changing actually. लेकिन आफ्टर 1 ईयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. It depends on the number of plugins you use. आप जितने प्लगइन्स डालेंगे उसके ऊपर प्राइसिंग डिपेंड करती है. जो Shopify Plus की फ़ी है वो जो है हमने क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था तो आज से 1 साल पहले तक वो $2,000 का था, तो हम $2,000 पे ही अभी ऑपरेट कर रहे हैं. मगर अगर आपको अभी नया कोई बंदा वेबसाइट दिखता है तो वो $2,200 में से चार्ज करेंगे. उसके बाद तो प्लगइन्स यूज़ $500 के तो एसेंशियल एक्चुअली प्लगइन्स आप इस्तेमाल करेंगे. प्लगइन्स जैसे आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है साइट के ऊपर, आपने कोई वीडियो बैनर डालना है या आपने कोई एनिमेशन डालनी है अपनी साइट के ऊपर या फिर फीचर्स लेने हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाए कि आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो रही है नहीं हो रही, या फिर कुछ आपकी टूल्स होती हैं, एग्रीगेटर्स होते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फेसबुक की मेटा की फीड है उसको फीड को फेच करने के लिए कुछ टूल्स आपको चाहिए होंगे, तो वो प्लगइन आप नीचे से इंस्टॉल करेंगे. अगर मैं फ्रंट एंड की बात करती हूँ, सामने मैंने कोशिश सोचा कि मैं एक वीडियो चलाऊंगी अपने उसके ऊपर, डिफरेंट वीडियोस नज़र आ रही होंगी मेरी साइट के ऊपर, वो ऐसे तो नहीं आएंगी. मैंने प्लगइन खरीदा, उसको इंटीग्रेट किया, तो उस प्लगइन के प्लगइन इज लाइक ए सर्विस ऑफ फीचर, तो अगेन वो C2B दोबारा वही वहाँ वो चीज़ आ गई. इसके एग्रीमेंट करने के बाद ही आपने पर्सनलाइज की वेबसाइट. हमें एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है. आपने Shopify की साइट लगाई, आपने उसके बाद डिफरेंट प्लगइन्स अपनी मतलब के ढूंढे. अगर मान एग्जाम्पल कौन सी नई प्लगइन अभी लगाए? Pairwith is also a plugin. Yes. Very recently she searched for Pairwith कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत ऐसे कपड़े बेच रहे हैं जहाँ पे शर्ट अलग है और ट्राउजर हमारा अलग हो रहा है, या एक ही ट्राउजर के साथ डिफरेंट टाइप के हम शर्ट्स बेच रहे हैं. तो मालूम मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि निदा अब हम 2 पीस तो कर रहे हैं मगर अब हम ऐसा करते हैं कि हम Pairwith एक ऐप है, Pairwith कुर्ता और शलवार को पेयर करने का, तो वो मैं चाह रही थी कि हम ऑन बोर्ड कर लें. तो उन्होंने मुझे Pairwith का वो ऐप दिखाया. आई थिंक वो हार्डली हमारा $9 से स्टार्ट था उसकी बेस प्राइस, कुछ $5 से भी स्टार्ट होती है, पर जितने आप एडवांस करते जाएँ $15, $20, $30 पे जाती रहती हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि वेबसाइट के नीचे क्या हो रहा है कि आपको फॉर एग्जाम्पल शर्ट नजर आ रही है, उसके साथ Pairwith दिस ट्राउजर, or if there is a trouser pair with this cut of shirt, pair with this cut of shirt. So you add them together and you check it out. तो ये जो pair with वाला ऑप्शन है ये आपका प्लगइन. फिर मैंने आपसे मेंशन किया हमारी जो वीडियोस आपको नजर आएंगी साइट के ऊपर जो नीचे चल रही हैं, उन वीडियोस के ऊपर क्लिक करके आप उनसे परचेज कर सकते हैं. तो ये वेबसाइट का बिल्ट इन फीचर नहीं है, ये प्लगइन है. तो आपका क्वेश्चन कि आपने एग्रीमेंट किया? नहीं, मेरे पास Shopify का प्लेटफॉर्म है, मैं कोई भी ऐप ढूंढ सकती हूँ कि ऐप टू पेयर विथ या वीडियो इम्बेड वीडियो टूल्स टू बाय फ्रॉम. इस तरह से मैं Shopify की पूरी लिस्ट के अंदर से बहुत सारी ऐप्स नजर आना शुरू हो जाएंगी. मैं उनके रिव्यूज़ देखूंगी, मैं देखूंगी कौन सबसे सस्ती है या मेरे बजट के अंदर आती है. वो करके मैंने अपने यूएड का मतलब क्या, आपका जो टेस्ट स्टोर होता है उसके अंदर आपने उसको प्लगइन वो इंस्टॉल किया और आपने चेक किया कि आपकी थीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, अगर थीम से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, इट्स गुड टू गो, यू टेक इट लाइव ऑन द लाइव स्टोर एज वेल. सो देन आपका जो बिल आता है Shopify का, फॉर एग्जाम्पल आपने $29 से स्टार्ट किया और $10 की मैंने सपोज ये ऐप ली, तो मेरा अगला महीने जो बिल आएगा $59 का आएगा और मेरा क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर पीछे लगा हुआ है. सो दैट्स हाउ इट इज. यू डोंट हैव टू गो एंड डू एग्रीमेंट्स अगेन, यू जस्ट इंस्टॉल. और अच्छा एक मजे की बात क्या है कि आपको Shopify के थ्रू या किसी भी ऐसे जो WooCommerce के थ्रू भी
दुनिया जहाँ के डेवलपर्स आपके पास एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि शॉपिफाई उन डेवलपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग होगी अगेन जो यूज़र फॉर्म साइन करते हैं वो आपको ऑनलाइन ही होता है, और उनके थ्रू आप हम बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करें। कुछ ऐप जो हमारे ऐप डेवलपर्स हैं इंडिया में बैठे हुए हैं, कुछ फ्रांस में हैं, कुछ बांग्लादेश में, तो यू आर एक्चुअली गेटिंग अ ग्लोबल एक्सपीरियंस। यू डोंट नेसेसरली नीड टू लाई ऑन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर और एनीबडी बेस्ड इन पाकिस्तान। एंड द बेस्ट पार्ट, हम अभी आगे जाते हैं मगर मैंने क्रेडिट कार्ड और CFO's क्रेडिट कार्ड, बट दैट्स हाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग एज ई-कॉमर्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई हैं, एसोसिएशन से बनी हुई है जो इस चीज़ को दे लुकिंग फॉरवर्ड। आगे जाइए। इसमें पेमेंट का चेक फ्लो हो गया? नहीं, हम आपको अभी अब हम आगे सवाल नहीं, आप सवाल जो आपके हैं मैं चाहूँगी कि आप इसको जरूर रीड कीजिए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अब आप लोग प्लीज़ रीड कीजिए इसको और हम डिस्कशन करते हैं इसको। G. What have you understood from this slide? Anybody? Maruk, what have you understood from this slide? No, I want the audience to respond. Akbar, आप बताइए। I think I have this one point regarding SMEs only. Shopify पे we can activate Shopify payments. Yeah. I'm not sure if it's available in Pakistan, but मतलब कोई और किसी और country में वहाँ पे आप Shopify payments activate कर सकते हैं. You can just connect your bank account. That's because I have a brand on Shopify. My website Shopify. I'm starting my brand, and I can just activate the Shopify payments and connect my bank account. वो personal हो, business का हो, कुछ भी हो. That means कि अब मेरा account connected है, कोई भी pay करेगा, that payment will directly reflect on my own account. So for SMEs, you can also go for these alternate options if you don't have the capital to invest with a payment gateway. Because down the line, which is great, तो फिर आप जो है gateways के ऊपर जा सकते हैं. And the most important part of having a payment gateway is कि आप I think security should be your first concern, and also your turnaround time of how frequent you are getting your payments from the payment provider, ताकि आप अपना flow of cash maintain कर सकें. और security I think is the concern that you should always look at. उसके अलावा बहुत सारे और points हैं. आपकी setup cost क्या है, मतलब आपकी partnership cost क्या है, how much margin they are charging from you, and then accordingly then you can make a decision कि किसके साथ जाना चाहिए, किस payment लेना चाहिए. जी, किसी ने और कुछ बोलना है इस पर? नहीं, मेरा ये है जो हम जो ये क्रेडिट कार्ड की सारी क्रीडेंशियल्स वगैरह डालते हैं जिसमें CVC वगैरह भी जो होता है, तो अगर वो किसी और जो पेमेंट मेथड है जैसे जस्ट लाइक जो लोकली जो खुल गए जैसे जस्ट इस टाइप के जो लोकल इवेंट, ये आगे जाके जो है अपनी एक सिक्योरिटी रीज़न ये भी जो है जो हम अपनी CVC वगैरह जो क्रीडेंशियल्स डालते हैं वो आगे सेल आउट भी कर सकते हैं। नहीं, डेटा आपका अच्छा, डेटा में आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस यस जरूर जा सकता है, मगर अगर आप किसी भी ब्रांड के आप चेकआउट पेज पे जाते हैं, जैसे क्योंकि आप बेसिकली ब्रांड नहीं, आप एक प्लेटफॉर्म के पेमेंट गेटवे के चेकआउट पेज पे जा रहे हैं, तो वो कुछ आपसे सवाल ही करता है कि क्या हम आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर लें, अपार्ट फ्रॉम योर CV, दैट इज़ नेवर सेव्ड, होपफुली इट्स नेवर सेव्ड. बट आपका जो ये CVV या जो बाकी के नंबर हैं वो आर नेवर सेव्ड, बिकॉज दैट्स द कंप्लाइंस दैट दे हैव विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज अगर वो ऐसा करने लगे तो फिर तो हम कभी भी ई-कॉम शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग कर ना सकेंगे. अगर ऐसा कहीं कभी ब्रीच खुदा ना खास्ता होता है तो उसी वक्त आपका स्टेट बैंक एक्शन लेकर उस बैंक को ऑब्वियसली दे विल बी सूड फॉर इट. हाँ, अगर आपका डेटा से मतलब बिग डेटा का मतलब क्या हुआ, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये ज़रूर कैप्चर होता है. और ये आप एग्री जो आप करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बस एग्री कर देते हैं, हम पढ़ते नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ है हाफ द टाइम. उसमें ये लिखा होता है कि आपका जो थर्ड पार्टी डेटा होगा वो ये आपका जा रहा होगा. पर CVV इज़ नेवर सेव्ड अनलेस कभी ऐसा होगा तो ये बहुत अनएथिकल, ये एथिकल वॉल्यूशन हो जाएगी, जिसके बाद स्टेट बैंक विल ऑब्वियसली शट डाउन द बैंक एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद दैट. देयर विल बी कंप्लायंस इशू. एंड देन आपका OTP जरूरी होता है फॉर your पेमेंट. तो जब तक OTP नहीं होगा यू कैन नॉट पे. वेरी रेयर केसेस ऑफ बैंक्स में कभी केसेस आते हैं लोगों के अकाउंट से पैसे वो चले गए, बट देन अगेन वो वैरीज बैंक टू बैंक, कोई अगर उनके ऊपर मैटर
मतलब यही है कि अगर हम अपना पे का ऑप्शन भी डाल लें तो कोई ऑथेंटिक हो जैसे HBL पे या कोई बड़े बड़े ब्रांड उसी के लगा सकते हैं कि अगर कोई मतलब कोई अगर स्टार्टअप लाइक ब्रांड है जो 1 साल या 6 महीने का पहले तो उसमें तो अलाउ नहीं कर सकते। यस। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जब हाई वॉल्यूम के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पीछे का डैशबोर्ड किस तरह का है, क्योंकि अक्सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ऑब्वियसली किसी ने आपने रिकन्सिलेशन तो करनी है ना, कि आपके फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर AB123 है और उसने ऑनलाइन पेमेंट की है, तो आपने कहीं ना कहीं से तो उसको वेरीफाई करना है ना कि पेमेंट आई है कि नहीं आई है। तो जैसे हम अल्फा इस्तेमाल करते हैं, सेफ पे कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे वो उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट उसका एक MD उसका एक रेफरेंस ID होता है, और रेफरेंस ID और ऑर्डर ID आपका मैप हो जाता है। उसमें आप देखते हैं कि इनके पास जो स्टेटस है पेमेंट कंफर्म है कि नहीं है। HBL की बहुत सारी लेयर्स हैं। एक कोड है उसका 481 का मतलब है कि फ्रॉडलेंट ऑर्डर है, कि आप इसको कंफर्म ना करें, मतलब ये ऑर्डर फ्लैग कर दिया उन्होंने। तो वो डिफरेंट लेयर्स के साथ आपके ऑर्डर्स को आपका जो ऑर्डर है या पेमेंट है उसके थ्रू जाती है और वेरीफाई होती है, फिर आपको वो बताता है, आपका जो बैकएंड है वही बता रहा होता है कि ये आपके ऑर्डर्स अप्रूव्ड है, गुड टू गो, यू कैन शिप योर पार्सल। अदरवाइज दे फ्लैग इट फॉर यू एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट द कस्टमर कि भाई आपके इतने सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये ऑर्डर आया हुआ है, का पेमेंट में ये मसला आ रहा है, प्लीज लुक इनटू इट। तो दे ऑब्वियसली आल्सो ट्राई टू सिक्योर योर बिजनेस फ्रॉम अनएथिकल और इलीगल ट्रांजैक्शंस बीइंग हैपनिंग। सो ये सिक्योरिटी लेयर बहुत ज़रूरी होती है। कोई और सवाल किसी का चीज़ के ऊपर? जी जी। जैसे आप लोग की जब किसी भी ई-कॉमर्स की पेमेंट आ रही होती है तो आप जैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग हैंडल करते हैं, तो लास्ट बजट में ये जो आपका टैक्स लगा है मेरे ख्याल से ओवरऑल 20-something% अराउंड 18% बढ़ गया। तो बहुत सारे ई-कॉमर्स अब ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि उनको तो लोकल पेमेंट आ रही है, मैं वो बाहर कंपनी रजिस्टर करा के एड्स वहाँ से रन कर रहे हैं, मैं भी वही। ओके, आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट फेसबुक एड्स वगैरह के एड्स की जो पेमेंट है जी या प्रोडक्ट की। अच्छा, एड्स की। ओके, सो द डिफरेंस, अगर आप अपना पर्सनल एड अकाउंट बनाते हैं जो भी आप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और आपके पास कोई बाहर का कार्ड नहीं है, आप अमेज़न के कार्ड से पे कर रहे हैं, तो आपको फिर टैक्स लगेगा, फिर उसके ऊपर कुछ फीस भी आ रही है कंपनी जो आपको पे करेगी। फीस भी आ रही है, और मैंने तो वो जैसे लिमिट आपने बताया लगा दी 30,000 USD की, तो वो तो कुछ भी नहीं है मतलब, तो फिर इसको कैसे टैग करना है और इंडिकेटिव खुलवा के करना है या क्या करना है? So the way that small businesses do, which I personally know of, है कि अगर कोई कर रहा है तो वो बाहर कोई अकाउंट या कोई दुबई का अकाउंट यूज़ कर रहा है, कार्ड यूज़ कर रहा है, या तो US का कोई कार्ड यूज़ कर रहा है, यहाँ ऑपरेट कर रहा है, कार्ड उसका ये है, यहीं से उसके US कार्ड से पेमेंट हो रही है, देन उसको टैक्स नहीं पे करना फेसबुक एड्स का, मेटा एड्स का, गूगल एड्स का वगैरह। बट इफ यू आर इन पाकिस्तान एंड इफ यू आर स्मॉल बिजनेस, आपके पास नहीं है ये रिसोर्स का बाहर का कोई कार्ड यूज़ करें, तो फिर तो आपको ये देना पड़ेगा। नहीं तो पेमेंट गेटवे में वो बाहर ही लगा है ना, पेमेंट गेटवे जो लगाएगा चेकआउट, तो वो तो फिर जैसे अगर यूएस का अकाउंट उसने यूएस में खोला मर्चेंट अकाउंट अपना। अच्छा, आप दो बातें जरा कंफ्यूज कर रहे हैं। आप पेमेंट गेटवे जो आपकी वेबसाइट लगा उसका पूछ रहे हैं या आप एड्स का पूछ रहे हैं? देखिए लोकल पेमेंट्स तो आ रही है, मगर लोकल पेमेंट से आप एड्स नहीं लगा पा रहे हाई टैक्स की वजह से, तो पेमेंट गेटवे ही मतलब बाहर का लगा के नहीं, आपको अगर बाहर का पेमेंट गेटवे लगाना है तो आपने रजिस्टर करना है वहाँ पे कंपनी को, और वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट भी लेना है अपना, फिर उसके बाद आप बाहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी वो तो ऑब्वियस बात है। हाँ, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, मगर अगर आप फेसबुक या गूगल पेमेंट की बात कर रहे हैं तो एक तरीका जो मैंने बताया आपको ये है कि कहीं आप बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर उनको सेटल कर रहे हैं, या किसी और ने अपना क्रेडिट कार्ड में या फिर क्रेडिट लाइन किसी ने बाहर अपनी ली हुई है, तो उसके थ्रू आप उनके पास स्पेस है उनके एड अकाउंट में, तो आपने उनको पे ऑफ कर दिया विद सर्टेन कमीशन दैट दे आर चार्जिंग, दे कैन रन द एड फॉर यू, दैट्स वन वे। या फिर कुछ एग्रीगेटर्स यहाँ पे होते थे, अभी डायल जीरो पे बेसिस करता है, तो डायल जीरो वगैरह उनके थ्रू आप अकाउंट खोल के, डायल जीरो इज ऑफिशियल मेटा पार्टनर, एंड अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं तो फिर आपने डायल जीरो पे करना है, फिर डायल जीरो में फेसबुक को जैसे भी पे करना है उसका, दैट सेव्स यू फ्रॉम द टैक्स एंड एवरीथिंग, आई एम अज्यूमिंग, राइट? यस, बट देन अगेन आपको डायल जीरो को पे करना है बिकॉज़ दे आर उनको काफी कमीशन देना होता है, जैसे किसी एजेंसी को कमीशन देते हैं। सबसे डोमेस्टिक सेल्स की प्रोसीड्स तो ये HBL के पे से इंटीग्रेशन के बाद मसला ही होता है। अगर इंटरनेशनल सेल्स के लिए फिर क्या है, यानी क्या ये पॉसिबल है कि हम यानी इसके अलावा कोई हल है कि वहाँ आपके रिश्तेदार के बाहर मुल्क में तो नहीं हो सकती, ऑर्डर तो कहीं से भी आ जाए? देखिए, हमने अगर हम अपनी बात करें, हम एक एंटरप्राइज हैं, तो हमने तो अपना HBL के का ही लिया हुआ है, तो हमें ऑब्वियसली में जो सेटल होने में एक जो अमाउंट है, अगर हम USD में भी चार्ज करें तो सेटल होकर PKR में हमारे पास आता है। सो इफ़ यू आर कंप्लाइंट
then you have to pay the taxes. You cannot like run away from that. तो आप यहाँ टाइम भी लगता है ना कि सेटल बिल्कुल आपका सेटल हो जाती है, आपको पता हो जाता है कि आपके अकाउंट पेमेंट आ गई, then 15 days you can get the payment out of your thing of your account. तो ऐसा नहीं है, सेटल तो फॉर्म तो आपका सेटलमेंट का टाइम एचबीएल में मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज है। और अगर कोई फ्रॉडलेंट ऑर्डर है और आपने 481 कोड के ऊपर है, आपने उसको भी अप्रूव कर दिया है और आपने उसने आपको फिर जो है कोई केस क्लेम डाल दिया उसके ऊपर, तो फिर वो 15 डेज लगते हैं उसके अंदर, बट अदरवाइज मैक्सिमम 3 डेज, नॉट मोर देन आप दैट। बाहर रजिस्टर करेंगे, आपको वहाँ की टैक्स तो देना या है, तो यू माइट एज वेल जस्ट गिव द टैक्स पे, और वहाँ फिर ऑपरेट करना आपके लिए मुश्किल है। अभी जो अलकरम है वो बाहर के कंज्यूमर को किस तरह उनका पेमेंट गेट है? हमारे पास अभी US में available हाँ, है। हमारा अब कंपनी बाहर रजिस्टर नहीं है अभी, नहीं नॉन रेजिडेंस नहीं अभी रजिस्टर हमने नहीं की। वी डू हैव सम प्लान्स इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, सो वी हैव एचबीएल पेमेंट। रास्ट के थ्रू कर रहा हूँ, रास्ट अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास एचबीएल है और सेफ पे है। सेफ पे में हमारे पास बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, रास्ट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। वी ओनली हैव क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे एंड योर COD। पेमेंट भी करते हैं Payoneer, Payoneer, yes, that's one of the payment gateways. We don't have that. We don't have that. अच्छा, रीज़न क्या है हमारे पास सारे पेमेंट गेटवेज क्यों नहीं है? बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्रेडिट कार्ड का जो कार्ड होल्डर्स है उनका वॉल्यूम बहुत कम है, 4% है। तो अगर मेरे पास 2 पेमेंट गेटवेज ऑलरेडी हैं तो वो ऑलरेडी इस पर 2% डिवाइड हुआ है, तो मैं किसी एक को तो अच्छा बिजनेस दे दूँ। अगर मैं 2 रख के बैठ जाऊँगी, अच्छा अल्फला को हमने ड्रॉप क्यों किया था? क्योंकि उसमें इंटरनेशनल का ऑप्शन नहीं था ट्रांजेक्शन का, और उनका बेसिक सक्सेस रेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आपका ऑर्डर बार बार कैंसिल हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर ही 100 आ रहे हैं और 100 में से 75 मेरे कैंसिल हो रहे हैं, तो सक्सेस रेशो खराब है, तो आई विल नॉट गो विद दैट पेमेंट गेटवे। सो आई ऑप्टेड फॉर पेमेंट गेटवे जिससे एटलीस्ट मेरी 35 to 45% सेल या 50% जो सेल्स है वो मेरे पास मेरी कंट्रोल में आ जाए, और बाकी की जो है वो फिर हम सेफ पे का, बिकॉज उसका लुक एंड फील ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है तो वो उसके ऊपर आ जाती है। तो इतने सारे पेमेंट गेटवेज अगर आप ऑनबोर्ड कर लेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप किसी को भी अच्छा बिजनेस नहीं दे पाएंगे। फिर कोई भी आपका जो क्लाइंट होगा या आपका जो बैंक या आपका पेमेंट गेटवे पार्टनर होगा, दे विल नॉट ट्रीट यू नाइसली, and they will not prioritize your business, right? So the idea is also for them to be prioritizing your business. Any other questions before we move forward to the logistics bit? पेज जो आप यूज कर रहे हैं जो भारतीय ऑडियंस के लिए, वो उनको किस तरह से शो होता है? वीजा, मास्टर कार्ड या डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट शो? नहीं, उनको बस वीजा मास्टर कार्ड इस्तेमाल होता है, बैंक अकाउंट नहीं, वो सिर्फ लोकल, यस वो सिर्फ लोकल को होता है। आपकी नीड्स हो गई कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा ऑर्डर? जी 96% COD है हमारे। चलिए अब हम सेकेंड लास्ट बिट पे आ रहे हैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर, आगे जाइए। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स अवेलेबल। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस साइट पढ़ें, उसके बाद मुझे सवाल प्लीज रीड द साइट, कैन यू सी इट? सेल्फ मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स, जो लॉजिस्टिक्स आप लोग खुद मैनेज कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी 3PL जो डेडिली अवेलेबल है। फिर क्या है आपके पास? लॉजिस्टिक्स अलायंस, आपको नजर आ रहा है लॉजिस्टिक अलायंस, अ पार्टनरशिप बेस्ड लॉजिस्टिक मॉडल वेयर कंपनीज कोलैबोरेट टू इंप्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सारे बिजनेस ने मिलके लॉजिस्टिक्स को साथ मैनेज करना शुरू कर दिया। बहुत कम होता है, पाकिस्तान में तो नहीं होता, ज़्यादातर पाकिस्तान में 3PL भी इस्तेमाल हो रहा होता है। 4PL क्या है कि एक कोई एग्रीगेटर है जिसे सारे फुलफिलमेंट सेंटर्स को, सबको बेसिकली कुछ भी गवर्नमेंट बॉडी, कुछ भी रेगुलेशन, सबको एक साथ क्लब किया, उन सबके साथ वो काम करवा रहा है, वो आपका बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इंस्टा लॉजिस्टिक्स हमारे पास इस तरह का 4PL है बेसिकली, जो कि एक थर्ड पार्टी है जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेपर्ड्स, ट्रैक्स, TCS सबको इंटीग्रेट कर रहा है, और हम उनके साथ डील कर रहे हैं, वो बाकी 3PL के साथ डील कर रहे हैं, और हमारे ऑर्डर्स उनके पास जिसके सबसे अच्छा सक्सेस रेशो है उनके थ्रू जा रहे हैं। सेल्फ मैनेजिंग का मतलब क्या? आज मेरी दुकान है, मेरा पॉल्ट्री का बिजनेस है, मैंने खुद बाइक का राइडर करवा के या खुद राइडर रख लिया, या फूड बिजनेस है मेरा, मैंने उसको जो है उसके थ्रू डिलीवरी करवाना शुरू कर दी। प्रोस क्या होंगे इसके? ग्रेटर कंट्रोल, आई कैन कॉल हाँ बेके करो, राइट? डायरेक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल स्केल। कॉन्स रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैन बी कॉस्टली एट स्केल। अगर हम अपनी फ्लीट स्टार्ट करता है तो भाई तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, कितने राइडर रखेंगे आप, कितनी बाइक्स खरीदेंगे, कितनी कार्गो वैन्स लेंगे। 3PL, ट्रैक्स, TCS, DHL, ये क्या कर रहे हैं? मेरे बिहाफ में मेरे ऑर्डर्स दे रहे हैं और मेरे कंज्यूमर को
ऑर्डर्स ले डिलीवर करें, कॉन्स लेस कंट्रोल ओवर दिस थिंग। अच्छा, हमने अल्तरम में क्या डिफरेंटली, अल्तरम की बात नहीं करूँगी बिकॉज हम वहाँ काम करते हैं तो हम अल्तरम की बात करेंगे। हमने अल्तरम में ये किया है कि हमारा जो सीएस डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट योर वनीला सीएस डिपार्टमेंट। सीएस का मतलब क्या होता है? कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। उनका काम ये नहीं है कि शगुफ्ता फ्रॉम रोसाना जौहर ऑर्डर्ड समथिंग एंड शी इज नॉट हैप्पी विद इट सो नाउ आई हैव टू गिव हर अ वाउचर। नो, their job is to ensure that Shagufta's order is delivered timely. How do they ensure that? The moment an order is dispatched from the warehouse, they start interacting with the 3PL partner, Frags guys, TCS guys, Leopard boys, Blue X boys. They make sure that my order, from the moment it's shipped from my warehouse, they know the status of it. Now it's picked up, now it's collected, now it's at their vicinity, now it's off for delivery. Has Shagufta received it? How many attempts? Second attempt, she called me, she emailed me, no, I haven't received my order. I call back 3PL people, give them pickup advice. You have to ensure that Shagufta's order is delivered today, within the tag of 2 business days. Because 3rd business day, Shagufta said, I don't want this order, take it back. I'm going to buy from Sapphire. Or anybody else. So I have to control my tag. तो उससे क्या हो रहा है? मैं अपना रिटर्न रेट कंट्रोल करूँ। रिटर्न रेट पता है इसको क्या? रिटर्न रेट क्या होता है? कि एक डिलीवरी जो आपकी गई है उस पर जो आपको एक्सपेंसेस आए, हाँ जी, रिटर्न्स बढ़ जाते हैं ना, तो वो रिटर्न रेट बढ़ जाता है। मतलब टैग यानी आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिला और आपको लॉस हुआ। या एग्जैक्टली। नाउ मुझे अपना रिटर्न रेट, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है कि आपको अपना रिटर्न रेशियो 15% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर 15% से आपका 16% आपका रिटर्न रेट आ रहा है ना, तो समथिंग इज वेरी रॉन्ग विथ योर ऑपरेशंस गाइस, फायर दैम। दैट्स व्हाट आई वुड डू। सो यू अंडरस्टैंड दिस पार्टनर्स, नेगोशिएबल पार्टनर्स है। ये मैप क्या बता रहा है? ये मैप हमें बता रहा है कि सप्लायर से हमने प्रोक्योरमेंट की अपनी प्रोडक्ट की, किसी का कोई भी बिजनेस हो सकता है, XYZ, ट्रांसपोर्ट के अपने स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन हुई, डिलीवरी हुई कस्टमर के पास और एंड में कस्टमर के पास गया। दिस इज द फिजिकल गुड फ्लो, जो कि और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी होता है। फिर कस्टमर का डेटा और डिलीवरी वगैरह जो भी है वो सप्लायर के पास भी जारी होती है। ये सब डेटा आपके इसमें से मेंटेन हो रहा होता है। दिस इज द ऑर्डिनरी बेसिक फ्लो ऑफ एनी ई कॉमर्स मॉडल, जो कि डिलीवरी उसके ट्रांसपोर्टेशन में कौन 2 जगह आप ट्रांसपोर्टेशन देख रहे होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 जगह एक्चुअली। ये जो आपके कोरियर्स है, एनी मोड ऑफ लॉजिस्टिक दैट यू चूज, सेल्फ मैनेजिंग, 3PL और 4PL व्हाटएवर, ये आपके उसके पार्टनर्स हैं। बैक टू योर क्वेश्चन, आगे चलिए। सक्सेस रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या मैंने 2-3 यहाँ पे एक इशू कैच किया था कि मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो ई कॉमर्स कंपनी शॉपिफाई, तो वहाँ पर शॉपिफाई में एक डिफॉल्ट होता है पोस्टल कोड। तो बहुत सारी औरतें वो फॉर्म फिल कर रही होती है तो पोस्टल कोड में कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो कहती है बाद पूछ के डालूंगी और वो उसमें वो रह जाता है। इवन वो ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब वो बहुत कम है लेकिन 1% मैटर करता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू था। तो उसको हमने इस तरह इशू को हैंडल किया कि हमने उस टर्मिनोलॉजी को चेंज करके एज लिख लिया। तो हमने एज दैट्स इंटरेस्टिंग, ओके, वहाँ पे डिजिट पुट करना होता है तो वो इजीली वो एज फॉरन। But isn't that a little difficult for the courier to track? For example, somebody buys 23. Now 23 is no postal code. पोस्टल कोड से तो कोरियर ट्रैक ही नहीं करता। पोस्टल कोड इंटरनेशनली कोड आता है ना, इंटरनेशनल भी होता है। मैं पाकिस्तानी सिनेरियो में इनको पाकिस्तान में नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होता पोस्टल कोड, वो फॉर्म फिल करते वक्त वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वहाँ छोड़ देते हैं। TCS से पहले बट पोस्टल कोड इज यूज्ड टू टैग योर ऑर्डर्स टू सर्टेन एरियाज, राइट? एरियाज का सामने नंबर होता है, तो एरियाज वो मतलब वही कहते हैं ना, पाकिस्तान पोस्ट या लेटर बैग जब तक होते थे बॉक्सेस, उस वक्त तक तो सबको पता था कि हमारे इलाके का पोस्टल कोड क्या है। अब नहीं पता होता ना, अब चेंज हो गया है सिनेरियो। हाँ, खैर इंटरनेशनल 75 वाला मॉडल यूज हो रहा है। या तो खैर इंटरेस्टिंग हैक, समथिंग फर्स्ट तो मास लेवल पे तो हम नहीं कर सकते बिकॉज़ अगेन आवर कोरियर्स वुड हैव एन इशू फॉर दैट। खैर व्हेन वी लुक इनटू डिजिटल चैनल्स, आपके पास बहुत सारे योर मेन और योर मेटा, योर टिकटॉक एंड गूगल एज वेल। अब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जहाँ पे भी उस प्रोडक्ट की ऑडियंस अवेलेबल है, बट मेटा इज जनरली मोर यूज्ड फॉर कन्वर्जन कैंपेन्स एंड एवरीथिंग। उसके अलावा यू हैव ईमेल मार्केटिंग, यूटिलाइज ईमेल मार्केटिंग, शॉपिफाई के बिल्ट इन ईमेल टूल्स एज वेल, ईमेल एप्स वगैरह होती हैं शॉपिफाई पे, आप खुद भी एक्टिवेट कर सकते हैं।
के ऑटोमेटेड ईमेल्स जाएँ फॉर चेकआउट एंड अबैंडन चेकआउट फॉर अबैंडन कार्ड्स, ताकि उनको यू गेट दोज ईमेल्स, यू लेफ्ट समथिंग एट चेकआउट, आपकी ईमेल आती है, उससे भी रिकवरी करने की। उसके अलावा आपकी रेगुलर कैंपेन्स भी जाएँ, क्या सेल ऑफर है, क्या न्यू कलेक्शन आई है, उसमें क्या न्यूज़ लेटर SMS is also one tool जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। And then you of course have SEO. SEO is making sure your website has all of the relevant keywords and relevant search terms that are used to look for your products. So हम अगर फैशन इंडस्ट्री में हैं, so हमारे लिए आउटफिट्स, सूट, एम्ब्रॉयडर्ड सूट, लॉन स्टिच, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका इन वर्ड्स का प्रेजेंट होना हमारी वेबसाइट पे इज रियली इंपॉर्टेंट, सो दैट whenever somebody looks for it and even if you're not running ads, we are able, Google is able to track and scan through our website and put us in the front कि हम visible होंगे कि first page या second page पे। उसके अलावा we have other AI based features as well, जैसे कि हमारे पास Convertizer, this is basically it gives you AI based recommendations कि आपको ये product भी अच्छा लगेगा। जैसे you see a product and then आप थोड़ा सा scroll करते हो product page के ऊपर, तो आपको multiple other products related थोड़े से उसके जैसे styles वगैरह वो recommend होते हैं कि आप ये भी खरीद सकते हैं, और या Convertizer। It's an Indian based app basically, जिसका हम AI based recommendation और बेस्ट सेलर या कस्टमाइज बैनर वगैरह का फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे आपके पास शॉपकास्ट हो गया, लोकली मेड टूल है, इसके थ्रू आपको AI बेस्ड रिकमेंडेशंस आती हैं नीचे, यू मस्ट यू मेल लाइक और यू व्यूड बिफोर, आपका पूरा जर्नी ट्रैक हो रहा होता है। AI बेस्ड है तो इसका जी आपका पूरा जर्नी ट्रैक हो रहा होता है, और अपसेल और क्रॉस सेल की भी ऐप्स होती हैं। इसमें ना मैं दो चीज़ें और इंक्लूड करूँगा जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। वो एक नोटिफिकेशन आता है नॉर्मली ब्राउजर पे, मतलब आप अलाउ कर दो, हम इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेट अबैंडन चेकआउट के लिए, ईमेल आपके पास आ जाएगी आधे घंटे में, या फिर पॉपअप आ जाएगा कि भाई लेफ्ट समथिंग यू कांट ब्राउज अबैंडनमेंट जिसे कहते हैं। इसके अलावा हम सब्सक्राइबर लेने के लिए, तो ये आपका जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल में भी होता है, ईमेल मार्केटिंग का जो आप टूल लेंगे उसके अंदर भी फीचर अवेलेबल होता है। एंड उसके अलावा अदर वेब पेजेस होते हैं जो आप ब्राउज करें, कुछ देख रहे हैं, और कभी कभी नोट होता है गूगल की साइट से इनको एक नोटिफिकेशन टाइप की चीज़ आती है विद पिक्चर एंड एवरीथिंग, दोस आर टाइप पुश, देन यू क्लिक ऑन इट एंड देन आप देखते हैं क्या इसमें एक आपको जो मैसेजिंग बताया है, मैसेजिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ईमेल वगैरह, लेकिन व्हाट्सएप ट्राई किया, मतलब व्हाट्सएप बहुत हाईली हम व्हाट्सएप बिजनेस वी आर यूजिंग दैट बिकॉज स्पेशली जब सबसे SMS की जो कॉस्ट है बहुत महंगी हो गई है, तो वी आर नाउ ऑब्वियसली ट्रांजिशनिंग टुवर्ड व्हाट्सएप एज वेल, और हमने अपना लाइव चैट बंद करके व्हाट्सएप पे ही हम मूव हो गए कि व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास, क्योंकि वी यूज इन टेलीकॉम, दैट्स अ CRM सॉफ्टवेयर।